Welcome to the new lecture of TRE2. In last lecture, we have discussed about different types of ballast material. Okay, so with that, we have almost completed the three main component of railway track, which is rails, sleepers, and ballast. As you all know, these are the three main component of railway track. Okay, so we have almost covered these three topics. Okay, so today we are going to discuss about the different types of fixtures and fastening of railway track. Fixtures and fastening means how we fix railway track. Okay, how we fix rails to the sleeper, how we connect two rails with different types of bolts, okay, plates. So these are the basic fixtures and fastening. So today we are going to discuss about those types of bolts, screws. Okay, so let's start. See, as you can see on in front of your screen, fixtures and fastenings. Okay, fixtures and fastening are fittings required for joining of rails end to end and also for fixing the rails to sleeper in a track. Okay, so as you can see, fixtures and fastening are fittings required for joining of rails end to end. Means if you want to connect the two rails, okay, as you all know, the length of one rail is 13 meter, but the track length is as you know in kilometers. So how we connect those rails? We connect by means of plates, bolts, screws. Okay, so fastening and fixtures are used for connecting or joining the two rails. Okay, joining the two rails and also fixing the rails. Okay, and also fixing the rails to the sleeper. Okay, fixing the rails to the sleeper. Okay, so let's see what are those components. See, first let's see functions of fixtures and fastening. Okay, सबसे पहले हम functions and उसके देख लेते हैं कि कौन कौन से functions है fixtures और fastening के. Rail fixtures and fastening have the following functions. Okay, to join the rails end to end to form full length of track. First, रेल से रेल को जो कनेक्ट करना है, ठीक है, वो फिक्सचर्स और फास्टनिंग के जरिए हम करेंगे. उसके बाद टू फिक्स द रेल्स टू स्लीपर, रेल्स जो रेस्ट करती है स्लीपर के ऊपर रेस्ट करती है, लेकिन क्या सिर्फ हम रेस्ट कराएंगे उसे? नहीं, हमें रेल्स और स्लीपर को जॉइंट करना है. ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बस हमने रेल्स को रख दिए. वी हैव टू कनेक्ट रेल्स टू द स्लीपर्स. After that, third point is to maintain the correct alignment of track. Of course, alignment को correctly maintain करना है तो fixtures and fastening का अच्छे से connect होना जरूरी है, यानी कि उसे अच्छे से provide करना जरूरी है. After that, to provide proper expansion gap between rails. As you all know कि rails में expansion और contraction होता है, ठीक है, तो हमें properly expansion gap provide करना है, वो भी हम fixtures और fastening के जरिए करेंगे. उसके बाद to maintain the required tilt of rail. Now tilt of rail आपको पता है, कोनिंग ऑफ व्हील जब हमने पढ़े थे तो हमने देखे थे कि जो रेल्स है वो एक स्लाइटली टिल्टेड होता है ना, वो टिल्टिंग जरूरी है. तो उसे मेंटेन रखने के लिए भी फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग का यूज करते हैं. ये हम एक बियरिंग प्लेट के जरिए करते हैं, ये हम देखेंगे आगे. आफ्टर दैट 6 पॉइंट टू सेट द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग इन प्रॉपर पोजिशन. जब दो रेल्स क्रॉस कर रही है, ठीक है, जब एक रेल से दूसरी रेल डाइवर्ज हो रही है, तो इसे प्रॉपरली पोजीशन में फिक्स करने के लिए भी फिक्सचर्स और फास्टनिंग का यूज करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग. अलग अलग टाइप्स है इसके, अलग अलग चीजें है, अलग अलग चीजें है फिक्सचर्स और फास्टनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं. एज यू कैन सी देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग. फर्स्ट वन इज फिश प्लेट, second is bearing plate, third is spikes, fourth is chair, fifth is bolts, 6 keys, 7 anti creepers. It may be more, it may be more, ये ज्यादा भी हो सकते हैं. जस्ट हमने 7 में इसको डिवाइड किए, ठीक है. इसके अलावा भी काफी चीजें होती है छोटी छोटी जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो 7 पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसे बस आप याद रखिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला देखिए, सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है फिश प्लेट. और फिश प्लेट को हमने कितने बार डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना. फिश प्लेट जो कि दो रेल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो अभी हम इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं फिश प्लेट को. सबसे पहला फास्टनिंग एंड फिक्सचर, सबसे पहला हम देख रहे हैं फिश प्लेट के बारे में. सो देखिए फिश प्लेट क्या होती है. फिश प्लेट सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ. ये होती है फिश प्लेट.
इमेज देखोगे तो आसानी से उसका थ्योरी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक रेल है ये वाली, फिर ये दूसरी रेल है ना। अब ये एक रेल से दूसरी रेल को कनेक्ट करने के लिए ये जो प्लेट लग रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है प्लेट, इसके ऊपर स्क्रूज वगैरह वो ये बोल्ट्स लगे हुए, ठीक है ना, बोल्ट्स नट बोल्ट्स के साथ इसे फिक्स किया गया है। तो ये जो प्लेट है ना, इसको बोला जाता है फिश प्लेट। अब एक जॉइंट के ऊपर कितनी फिश प्लेट आएगी? 2 फिश प्लेट आएगी, क्योंकि उस साइड भी एक फिश प्लेट लगेगी। ठीक है, उस साइड भी एक फिश प्लेट लगेगी, इस साइड भी एक फिश प्लेट, तो ये होती है फिश प्लेट। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। See the first point. Fish plates are used in rail joints to maintain the continuity of the rails. ठीक है, सेंटेंस का मतलब सिंपल है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना यानी 2 रेल्स को कनेक्ट करना। तो फिश प्लेट के जरिए हम रेल की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, यानी कि 2 रेल को कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फिश प्लेट का कहाँ पे यूज आएगा? रेल जॉइंट्स पे। फिश प्लेट्स आर यूज्ड इन रेल जॉइंट्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल, यानी कि 2 रेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम फिश प्लेट को यूज करते हैं। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये 2 रेल को कनेक्ट किया, यानी कि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी ट्रैक की। कैसे मेंटेन होगी? फिश प्लेट के जरिए, है ना। ट्रैक कंटिन्यू कब होगा? जब हम इसको फिश प्लेट के जरिए अटैच कर देंगे। दूसरा पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ फिश प्लेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। फर्स्ट इज फॉर जॉइनिंग फ्लैट फुटेड एंड सेकेंड इज फॉर जॉइनिंग बुल हेडेड। ओके, पहली फिश प्लेट जो यूज करते हो फ्लैट फुटेड के लिए, दूसरी बुल हेडेड के लिए। अलग अलग टाइप की फिश प्लेट्स यूज करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, ईच फिश प्लेट इज 457 mm लॉन्ग। इसकी देखिए लेंथ जो है वो 457 mm लॉन्ग होती है, प्रोवाइडेड विथ 4 होल्स। इसमें कितने होल्स होते हैं? 4 होल्स, 32 mm डाया। सिंपल बता रहा हूँ आपको, देखिए 4 होल्स है यहाँ पे, 4 होल्स है, 32 mm का डायमीटर होता है, और इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 114 mm है। ये देखिए, एट अ स्पेसिंग ऑफ 114 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि एक भी ये जो फिश प्लेट है इसकी लंबाई कितनी होती है? 457 mm। ठीक है ना, 457 mm, ऑलमोस्ट 45.7 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गई उसकी लेंथ। उसके बाद ये इसमें कितने होल होते हैं? 4 होल होते हैं। ठीक है ना, चारों के अंदर नट बोल्ट के जरिए से फिक्स किया जाता है ना, और इसका डायमीटर एक होल का कितना है? 32 mm। ठीक है, ये इसका डायमीटर कितना है? 32 mm, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? स्पेसिंग 114 mm। याद रखेंगे इसको। ठीक है, याद रखिए इसको, ये सेंटेंस को। 2 टाइप्स ऑफ फिश प्लेट यूज की जाती है, फ्लैट फुटेड को जोड़ने के लिए और बुल हेडेड के लिए अलग। ईच फिश प्लेट इज 457 mm लॉन्ग एंड प्रोवाइडेड विथ 4 होल्स, 32 mm डाया एट अ स्पेसिंग ऑफ 114 mm। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज, these are manufactured of steel and are so designed that they can fit in between the head and foot of rail। इसे स्टील, ऑफ कोर्स स्टील की प्लेट है, ठीक है, और इसे देखिए इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि ये जो हेड है और उस फुट इनके बीच में फिक्स हो जाए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो फिश प्लेट है, ठीक है ना, ये जो फिश प्लेट है ये रेल के वेब से टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रेल का जो वेब है, देखिए ये जो वेब है, ये हेड हो गया, ये फुट हो गया, और ये जो बीच का पार्ट है इसे हमने पढ़े थे ना, रेल का वेब है। ठीक है ना, हेड है, फुट है और ये वेब है। तो जो फिश प्लेट है वो वेब से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वेब से अटैच हो जाएगी फिश प्लेट, ध्यान दीजिए, अगर वो फिश प्लेट वेब से अटैच हो जाएगी तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, जो थोड़ा सा हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपांशन के लिए गैप, वो प्रॉपर में नहीं होगा, और उसके साथ साथ वियर, जो वेब में वियर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर फिश प्लेट पूरी तरीके से फिक्स की जाती है अंदर तक के, ठीक है, तो क्या होता था, इसमें वियर आ सकता था। तो ये हेड और इसके फुट तक के अटैच की जाती है। एक और फिश प्लेट की इमेज है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये जो वेब से अटैच नहीं होती है। ठीक है, फिश प्लेट वेब से अटैच नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट देखिए, दे मस्ट सपोर्ट द अंडरसाइड ऑफ रेल एंड टॉप ऑफ फुट। ठीक है ना, दे शुड अलाउ a free movement of rails for expansion and contraction. For this purpose, they should not touch the web of rail. ठीक है ना, यही मैं आपको बता रहा था, they should not touch the web of rail। ठीक है ना, ये देखिए एक और एग्जांपल है फिश प्लेट का, 4 बोल्ट है इसमें भी। ठीक है, ठीक है, तो ये फिश प्लेट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग टाइप की फिश प्लेट है। ठीक है ना, अलग अलग जॉइंट के हिसाब से अलग अलग फिश प्लेट है, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस बहुत सारी फिश प्लेट अलग अलग किस्म की यूज की जाती है जॉइंट के हिसाब से। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको फिश प्लेट समझा, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए नट बोल्ट के जरिए से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट देखिए, फिश प्लेट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। दे शुड होल्ड द एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल इन करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। जो दो रेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उसे प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में होल्ड करके रखना चाहिए फिश प्लेट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल हो जाए दो रेल्स के, ठीक है। इसे प्रॉपर्ली जब रेल्स दो कनेक्ट करेंगे तो उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल चेक करना है प्रॉपर्ली। अगर वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर लेवल में है दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, तब जाके हम फिश प्लेट को अटैच करते हैं। आफ्टर दैट दे शुड अलाउ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट्स ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ये कब होगा? जब वेब से कनेक्टेड ना हो, ठीक है ना। जैसे अभी हमने डिस्कस किए वेब के साथ वो अटैच ना हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट को अलाउ करना चाहिए फिश प्लेट में, ठीक है ना। क्योंकि उसकी वजह से क्रैक आ सकते हैं अगर वो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्रीप हो सकता है या क्रैक आ सकते हैं। आफ्टर दैट दे शुड बी एबल टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वियर्स, ठीक है ना। फिश प्लेट पे भी वियर आएगा क्योंकि स्टील के, ठीक है ना, तो मटेरियल कोटिंग भी करते हैं, तो उसके जरिए कोई भी वियर फिश प्लेट पे ना हो, इसके लिए हम कोटिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे शुड be able to bear all the vertical and lateral stresses which comes at joint without any distortion. हमने हमेशा पढ़े है the joint is considered to be the weakest part of railway track. ओके, vulnerable है सबसे ज्यादा, cracks हो सकता है, deteriorate हो सकता है, distort हो सकता है। तो joint जो है सबसे important part है, इसलिए joint को strong बनाना जरूरी है। और joint को strong बनाने के लिए fish plate का strong होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि fish plate joint के ऊपर सबसे लोड जो आएगा, स्ट्रेस आएगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट जॉइंट पे आएगा। तो जो लैटरल मूवमेंट है या वर्टिकल स्ट्रेस हो आ रहे हैं या लैटरल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ट्रेन मूव करने की वजह से वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये सारे जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं ट्रैक के ऊपर, जॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है उसे होल्ड करना, उसे रेजिस्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिश प्लेट की। तो फिश प्लेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और फिश प्लेट तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, साथ ही में जो नट बोल्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पाइक्स, बोल्ट्स, जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5th पॉइंट, दे शुड अलाउ इजी रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स इन केस ऑफ वियर एंड डैमेज। अब सपोज रेल्स को हमें रिमूव करना है, ठीक है ना, या फिर डैमेज हो गया तो उसे निकालना है या रिप्लेस करना है, तो इसके लिए भी आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। इतना आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो आसानी से रिमूव हो जाए या रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये 5 रिक्वायरमेंट थी, इजी रिक्वायरमेंट है पांचों। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? दे शुड होल्ड द एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल इन करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन। दूसरा था लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट अलाउ करना चाहिए। तीसरा, किसी भी तरह के वियर से बचना चाहिए, मतलब रेजिस्ट करना चाहिए। और चौथा हमने देखे कि जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसे प्रॉपरली रेजिस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने देखे आसानी से रिप्लेस या रिन्यू हो जाए। बहुत इजी है पांचों पॉइंट याद करना, ठीक है। तो ये था फिश प्लेट के बारे में। फिश प्लेट के बारे में आई होप आपको समझा है। फिश प्लेट क्या है? एक तरीके की एक प्लेट है जो कि यूज करते हैं दो रेल्स को कनेक्ट करने के लिए, उसे बोला जाता है फिश प्लेट। ये फिश प्लेट हो गई। फिश प्लेट के अंदर 4 होल होते हैं। एक होल का डायमीटर 32 mm होता है, ठीक है ना। और होल टू होल स्पेसिंग होती है 114 mm, 114 mm, ठीक है ना। 114 mm, ठीक है ना। 114 mm इसकी स्पेसिंग होती है। और इसकी जो लेंथ है फिश प्लेट की वो होती है 457 mm, ठीक है ना। ये आपको एक दिख रहा है, एक तरह का इसका शेप अलग है। ये फिश प्लेट का फ्लैट भी होती है, ये इस तरीके से फ्लैट भी होती है फिश प्लेट, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से फ्लैट भी होती है फिश प्लेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश प्लेट के बाद जो अगला हम देखने वाले हैं वो है बियरिंग प्लेट के बारे में। फिश प्लेट आपको समझ गया है पूरी तरीके से, आई होप आपको समझ गया है। बियरिंग प्लेट देखते हैं। देखिए बियरिंग प्लेट क्या है? ये कास्ट आयरन या स्टील प्लेट्स है। देखिए यहाँ पे बियरिंग प्लेट्स आर कास्ट आयरन और स्टील प्लेट्स, ठीक है ना, प्लेस्ड इन बिटवीन द फ्लैट फुटेड रेल एंड वुडन स्लीपर ऑफ अ रेलवे ट्रैक। फ्लैट फुटेड रेल और वुडन स्लीपर के बीच में इसे रखा जाता है। अब आप खुद सोचिए, जो फ्लैट फुटेड रेल हमने पढ़े थे और वुडन स्लीपर के ऊपर डायरेक्ट फ्लैट फुटेड रेल हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। जो रेल्स है उसके नीचे एक बियरिंग प्लेट रखी जाती है, फिर स्लीपर आते हैं। ये
फ्लैट फुटेड रेल में जनरली करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लैट फुटेड रेल इफ फिक्स डायरेक्टली ऑन वुडन स्लीपर सिंक इन द स्लीपर ड्यू टू हैवी लोड्स ऑफ ट्रेन एंड thus लूजन द स्पाइक। देखिए अगर डायरेक्ट फ्लैट फुटेड रेल को वुडन स्लीपर के ऊपर रखा जाता है तो क्या होता है, सिंकिंग होता है, हैवी लोड्स डायरेक्ट जो आएंगे वो एकदम से वुडन स्लीपर पे आ सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए हम बियरिंग प्लेट एक प्रोवाइड करते हैं। तो इसे हटा है, मतलब इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बियरिंग प्लेट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, अंडर फ्लैट फुटेड रेल, जो फ्लैट फुटेड रेल है उसके नीचे, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर वाइडर एरिया एंड ब्रिंग द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विद इन द लिमिट। इसकी मैं इमेज बताता हूँ, आसानी से समझेगा आपको। ये देखिए, ये फ्लैट फुटेड रेल है, ये स्लीपर है, ये हो गई आपकी बियरिंग प्लेट, ये जो है ये बियरिंग प्लेट। तो ये बियरिंग प्लेट इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जहाँ पे स्लीपर आएगा वहाँ वहाँ पे बियरिंग प्लेट आएगी। थ्रू आउट लेंथ ऑफ रेल आपको बियरिंग प्लेट प्रोवाइड नहीं करना है, जहाँ पे स्लीपर के ऊपर रेस्ट करेगा रेल उसके जस्ट ऊपर है। देखिए ये स्लीपर हो गया, ये ऊपर क्या प्रोवाइड किया आपने, बियरिंग प्लेट। ठीक है, बियरिंग प्लेट को देखिए बोल्ट्स के जरिए फिक्स किया गया है, ये बोल्ट से ऐसे फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रेल्स, ये रेल रेस्ट कर रहा है बियरिंग प्लेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए बियरिंग प्लेट gives the required 1/20 inward slope to the rail directly and no edging is required in the wooden sleeper। आपको पता है कोनिंग ऑफ व्हील में हमने पढ़े थे कि ये जो रेल है देखिए इस तरीके से हल्का सा टिल्ट है ना। कोनिंग ऑफ व्हील में हमने पढ़े थे कि रेल जो है थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये टिल्टेड रेल कब होगा, जब ये बियरिंग प्लेट, देखिए बियरिंग प्लेट को डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये 1/20 का इनवर्ड स्लोप है, ये इस तरीके से, ये जो स्लोप है ये 1/20 का इनवर्ड स्लोप है। यहाँ पे स्लोप की वजह से ये हल्का सा टिल्ट हो रहा है रेल, है ना, हल्का सा टिल्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से टिल्टिंग ऑफ रेल मेंटेन हो रही है। और इस अगर ये होगा तो नो एडजिंग इज रिक्वायर्ड। आपने देखे तो स्लीपर को भी काटा जाता था, जैसे कि स्लीपर है इसमें भी ऐसा स्लोप प्रोवाइड किया जाता है जिसको बोला जाता था एडजिंग ऑफ स्लीपर, लेकिन यहाँ पे स्लीपर में वो एडजिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बियरिंग प्लेट में एडजिंग प्रोवाइड की गई है। आप बोल सकते हो बियरिंग प्लेट में स्लोप प्रोवाइड किया गया, इसलिए डायरेक्टली बियरिंग प्लेट में स्लोप प्रोवाइड किया गया है, इसलिए स्लीपर में एडजिंग की जरूरत नहीं है, यही इसका मीनिंग है। नो एडजिंग इज रिक्वायर्ड इन द वुडन स्लीपर। एडजिंग ऑफ स्लीपर भी हमने पढ़े थे पहले। ठीक है, उसमें क्या होता था, स्लीपर के ऊपर एक स्लोप दिया जाता था, ऐसा हल्का सा इनवर्ड स्लोप, जैसे कि इसका स्लोप दिख रहा है ना, स्लीपर के ऊपर दिया जाता था। अभी क्योंकि हम बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करें तो बियरिंग प्लेट में वो स्लोप दिया गया है, तो इसमें एडजिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखिए दीज आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स बाय स्पाइक्स। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोला जाता है स्पाइक्स, इस तरह का नट की तरह दिखता है ये सॉरी बोल्ट की तरह, ये देखिए ये इस तरीके से स्पाइक बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बोल्ट की तरह दिखता है जिसे स्पाइक्स भी बोला जाता है। तो इस तरीके से दीज आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स बाय स्पाइक्स। ठीक है ना, ये स्लीपर के साथ जो प्लेट है इसे हम स्पाइक्स के जरिए, बोल्ट की तरह दिखता है, इसे फिक्स किया जाता है। तो ये होती है बियरिंग प्लेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस देख लीजिए। बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करने के एडवांटेजेस क्या है, दे डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स टू वाइडर एरिया एंड प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ रेल टू द स्लीपर। ये अभी हमने देखे, अगर स्लीपर के ऊपर डायरेक्ट रेस्ट करेंगे तो सिंकिंग हो सकती है, और जब आप बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करोगे तो वाइडर एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडजिंग ऑफ स्लीपर अवॉइड हो जाती है ऑटोमेटिक, अभी हमने देखे। दे एनेबल द स्पाइक्स टू रिमेन टाइट एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ठीक है ना, ये जो स्पाइक है प्रॉपर्ली फिक्स होता है इसमें। ठीक है, बियरिंग प्लेट्स प्रिवेंट द वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व। बियरिंग प्लेट जो है वो जो रेल्स है, ठीक है ना, इसे बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है। तो क्या होगा, जो कर्व पे ट्रेन जब टर्न होगी तो ये वाइडनिंग नहीं होगा वहां पे। ठीक है ना, वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व। बियरिंग प्लेट इंक्रीजेस द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक। ठीक है, दे प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लीपर्स ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ रेल। इसमें क्या होता है, ये जो स्लीपर्स है इसके ऊपर डायरेक्ट अगर रेल प्रेस करेगा तो रबिंग एक्शन होता है, लेकिन क्योंकि बियरिंग प्लेट है इसलिए रबिंग एक्शन भी अवॉइड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस है इसके बियरिंग प्लेट के। आफ्टर दैट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो कि कम है, बट देख लेते हैं। When the bearing plates become loose due to settlement of ballast, moisture is likely to enter between the sleeper and plates, causing sleeper to wear. अगर जो बियरिंग प्लेट है वो लूज हो जाए, उसके स्पाइक्स निकल जाए तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो
वुड जो स्लीपर है उसके अंदर या प्लेट्स में आ सकता है, जिसकी वजह से वियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद when any spike is damaged and it is required to re-driven at another place, all the other spikes of the bearing plates have to be removed, which will reduce the holding power of spikes. किसी भी bearing plate में अगर spike damage हो जाता है तो आपको पूरों को निकालना पड़ता है और फिर से फिक्स करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होगा, स्पाइक्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्पाइक्स में आपको बता दूं, स्पाइक्स ये होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको बोल्ट की तरह अंदर दिखे अटैच किया गया, ये स्पाइक्स है। स्पाइक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। ये थे बियरिंग प्लेट के बारे में। चलिए स्पाइक्स देख लेते हैं जल्दी से। देखिए स्पाइक्स क्या है, स्पाइक्स आर यूज्ड टू फिक्स रेल्स टू वुडन स्लीपर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेल्स और वुडन स्लीपर, ठीक है ना। अब इसके अलावा रेल्स और कोई और भी स्लीपर हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है वुडन स्लीपर। आप इसको सिंपल याद रखिए, रेल्स और स्लीपर को फिक्स करने के लिए स्पाइक्स की हेल्प ली जाती है, होते हैं स्पाइक्स, ठीक है ना। स्पाइक्स देखिए चार तरह के, डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक, स्क्रू स्पाइक्स और इलास्टिक स्पाइक्स। चलिए आगे देखते हैं डॉग स्पाइक्स क्या होते हैं। सबसे पहले इमेज दिखाता हूँ आपको, ये होते हैं डॉग स्पाइक्स। इसके आपको शेप से ही दिख रहा है कि इसका नाम डॉग स्पाइक रखा गया है। और ये इमेज देखिए, रेल्स और ये स्लीपर को किस तरीके से ये प्लेट के जरिए फिक्स किया गया है। स्लीपर को जो रेल का जो फुट है, देखिए यहाँ पे इसका इस तरीके से जो एक्सटेंडेड पार्ट है हेड का, वो अटैच हो जाता है और इसे अंदर तक के पूरी तरीके से अंदर तक इसे हैमर के जरिए डाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों में स्लीपर और रेल दोनों फिक्स हो जाएंगे। ये होता है डॉग स्पाइक। देखिए इसका शेप देखिए, इसलिए इसका नाम डॉग स्पाइक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। Dog spikes are the cheaper type of spikes which hold the rails at correct gauge and can be easily fixed and removed. सबसे आसानी से फिक्स भी हो जाता है, सबसे आसानी से रिमूव भी हो जाता है और सबसे चीप है और इजीली अवेलेबल है। ठीक है, डॉग स्पाइक्स। उसके बाद these are commonly used for holding flat footed rails. याद रखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो फ्लैट फुटेड रेल है इसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं इसके हेड की वजह से। हेड इसका देखिए कितना एक्सटेंडेड है, तो ये जो हेड है इसकी वजह से ये आसानी से होल्ड कर सकता है। ठीक है, देखिए 4 डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड पर स्लीपर। एक स्लीपर में 4 डॉग स्पाइक्स हम यूज करते हैं। 2 ऑन आइदर साइड ऑफ रेल, 2 इधर साइड और 2 उस साइड, 2 अलग साइड। ठीक है ना, जैसे कि ये इधर देखिए आप स्लीपर में, ये एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और उधर साइड भी 2 लगेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इसे फिक्स किया जाता है। ठीक है, रेल्स को वुडन स्लीपर में फिक्स करने के लिए जनरली डॉग स्पाइक्स का यूज करते हैं। जब भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप याद रखिए कि कोई भी स्लीपर हो सकता है, लेकिन डॉग स्पाइक्स जब यूज करते हैं तो वुडन स्लीपर ही होता है। ठीक है ना, वुडन स्लीपर और रेल्स को फिक्स करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एक डिसएडवांटेज है। द डिसएडवांटेज ऑफ डॉग स्पाइक इज दैट दिस बिकम्स लूज अंडर द हैवी वेव एक्शन कॉज्ड बाय मूविंग ट्रेन। जब बहुत स्पीड से ट्रेन मूव करती है तो ये लूज हो जाते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, आई होप आपको ये डॉग स्पाइक समझा है। देखिए डॉग स्पाइक इस तरीके से, स्पाइक्स इस तरीके से अंदर जाता है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कितना शार्प एज है इसका। ठीक है, तो ये रेल्स और स्लीपर, देखिए यहाँ पे कितना आसानी से आपको समझ सकता है। ये रेल्स है, स्लीपर है, ये एक तरीके की प्लेट है छोटी सी, इसको हम अंदर तक डालते हैं और यहाँ पे ये देखिए इसका जो हेड है ये इससे कनेक्ट हो जाता है, एकदम अटैच हो जाता है उससे। स्लीपर और रेल एकदम अटैच हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राउंड स्पाइक के बारे में। ये आपने बहुत दफा देखे, मैक्सिमम आपने राउंड स्पाइक ही देखे है ना। और ये कंक्रीट स्लीपर में ज्यादा यूज करते हैं। इस पे लिखा जरूर वुडन स्लीपर है, लेकिन आप याद रखिए कि ये कंक्रीट स्लीपर पे भी ज्यादा यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम कंक्रीट स्लीपर पे यूज किए जाते हैं। देखिए इस तरीके से राउंड स्पाइक है, राउंड शेप है इसलिए से राउंड स्पाइक कहा जाता है। ये रेल्स का और स्लीपर को फिक्स करने के लिए इस तरीके से यूज किए जाते हैं। Round spikes are used for fixing the chairs of bull-headed rails to wooden sleeper and also fixing the slide chair of points and crossing. ठीक है, इस तरीके से देखिए ये जो चेयर्स है इस तरीके से ये 2 पार्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है और ये इस तरीके से हम राउंड स्पाइक्स को यूज कर रहे हैं। These have either cylindrical or hemispherical head and blunted end. ठीक है ना, इस तरीके से इसका शेप है। देखिए इसमें एक आपको क्लियर दिखेगा ये इमेज। देखिए वुडन जो कंक्रीट स्लीपर है उससे भी फिक्स करने के लिए ये राउंड स्पाइक को यूज कर सकते हो आप। ठीक है,
आफ्टर दैट थोड़ा सा बोल्ट्स के बारे में देख लीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स यूज इन इंडियन रेलवे, ठीक है ना। फिश बोल्ट, हुक बोल्ट और फैंग बोल्ट। तो नाम से देखिए जैसे दिख रहा है, फिश बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग फिश प्लेट विद द रेल्स, ठीक है ना। फिश प्लेट और रेल्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज फिश बोल्ट, ठीक है ना। 4 बोल्ट यूज करते थे, हमने पढ़े थे जब, है ना, 32 mm डाया के। दीज बोल्ट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्रैक एंड बोल्टेड ऑन द इनसाइड ऑफ ट्रैक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिश बोल्ट्स हैव टू विथस्टैंड shear due to heavy transverse stress, hence they are manufactured of medium और high carbon steel. मीडियम या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। जो लेंथ है फिश बोल्ट की वो डिपेंड करती है फिश प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। फॉर 44.7 kg रेल द फिश बोल्ट ऑफ 25 mm डाया एंड 127.6 mm लेंथ आर यूज्ड, ठीक है ना। These bolt get loosened due to vibration of moving train, hence these are to be tightened time to time. जब ट्रेन मूव करती है स्पीड से तो क्या होता है, जो बोल्ट है वो निकल लूज हो जाते हैं, तो इसलिए मेंटेनेंस जो होता है ट्रैक का उसमें क्या किया जाता है, ये जो बोल्ट है इसे टाइट किया जाता है। अगर देखिए उसके बाद देखिए टू मच टाइटनिंग ऑफ बोल्ट इज प्रोहिबिटेड एज इट प्रिवेंट्स फ्री एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। अगर बहुत ज्यादा हमने टाइट कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी ही, उसके साथ साथ वो बोल्ट जब रिमूव करेंगे फिश प्लेट को तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से बोल्ट्स है, ठीक है, ये देखिए फिश बोल्ट्स है। आफ्टर दैट ये देखिए फिश बोल्ट अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट हुक बोल्ट्स आर आल्सो नोन एज, हुक बोल्ट्स के बारे में देखिए, हुक बोल्ट्स आर आल्सो नोन एज डॉग बोल्ट्स ड्यू टू देयर शेप ऑफ हेड्स। These bolts are used to fix sleepers which directly on a girder. 2 bolts per sleeper are used, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से होता है, ये हुक बोल्ट होता है, स्लीपर और रेल्स को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से हम देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फैंग बोल्ट्स। फैंग बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग साइड चेयर्स टू स्लीपर, ठीक है ना। चेयर्स स्लीपर और रेल्स को कनेक्ट करने के लिए चेयर्स करके भी यूज किया जाता है, वो मैं आपको इमेज बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो उसमें फैंग बोल्ट्स का यूज किया जाता है, ये होते हैं फैंग बोल्ट्स, ठीक है। देखिए ये होता है चेयर्स, ठीक है ना। ये देखिए ये चेयर्स है, ये जॉज होते हैं चेयर्स के, तो चेयर्स के अंदर जो बोल्ट यूज करते हैं उसे बोला जाता है फैंग बोल्ट्स, ठीक है। जस्ट आपको एक इमेज बता रहा हूँ मैं, ये वो इसको बोला जाता है चेयर्स, ठीक है ना। चेयर्स भी काय के लिए यूज करते हैं, रेल्स और स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए जो पार्ट यूज किया जाता है इसको बोला जाता है चेयर्स, ठीक है। तो फैंग बोल्ट जो है वो चेयर्स में यूज किया जाता है। These are alternative to screw or round spikes. The fang bolts are found to be more effective but are not generally used because fixing and removal of these bolts are difficult. इसके शेप से आपको दिख रहा है कि इसकी फिक्सिंग भी आसानी है और इसको रिमूव करना भी आसानी है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कीज के बारे में। कीज क्या होती है, इसको हमने पढ़े थे एक बार, जहाँ तक मुझे याद है कीज हमने पढ़े एक टॉपिक में, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। These are the small tapered piece of timber or steel used to fix rails to the chairs on metal sleeper, ठीक है। मेटल स्लीपर के ऊपर जो चेयर्स और रेल को फिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी इमेज देखोगे तो समझ जाएगा, इमेज दिखाए तो पहले देखिए इस तरीके से होता है। ये चेयर्स है, अभी मैंने आपको चेयर्स की एक इमेज दिखाया है ना। ये चेयर्स देखिए, ये चेयर्स क्यों यूज करते थे, रेल्स और स्लीपर को फिक्स करने के लिए। देखिए चेयर का बोल्ट है, तो चेयर्स और ये इसके बीच में ना ये इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है मेटल, ठीक है ना। इसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि ये इसमें प्रॉब्लम ना, जो फ्री गैप ना रहे इसके बीच में, इसलिए इसके बीच में एक की को डाला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, ये वुडन की भी होती है और मेटल की भी होती है, ठीक है। ये इमेज से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये इमेज थोड़ी अलग है। ये की इस तरीके से इसको बोला जाता है की। उसके बाद देखिए वुडन कीज आर स्मॉल स्ट्रेट और टैपर्ड पीस ऑफ टिम्बर, ठीक है ना। These are cheap and easily prepared. These are not strong and become loose under vibration. Wooden key जो है इतनी strong नहीं है. These require frequent maintenance. Wooden keys are not used in nowadays in Indian Railway. अब ये use नहीं होती है, metal keys use की जाती है। Wooden keys वैसे भी इतनी strong नहीं है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे हम metal, ये wooden key आपने देख लिया अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं मेटल की। मेटल कीज आर स्मॉल टैपर्ड और स्प्रिंग लाइक पीस ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पे ये मेटल की है, इसके बीच में देखिए ये चेयर्स हो गया और ये मेटल की है, ठीक है। ये देखिए मेटल,
चेयर्स में सिंपल आपको बता रहा हूँ, चेयर्स के बारे में अभी आप इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चेयर्स देखिए इस तरीके का जॉ टाइप का होता है रेल और स्लीपर को फिक्स करने के लिए। तो चेयर्स और रेल के बीच में जो डालते हैं हम, इसे बोला जाता है की। तो मेटल की है ये, ठीक है। मेटल कीज आर स्मॉल टेम्पर्ड और स्प्रिंग लाइक पीस ऑफ स्टील। These keys are much more durable than wooden। ये of course wooden की से ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये दो टाइप की है, स्टुअर्ट्स की और मॉर्गन की, जिन्होंने इन्वेंट किया उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लीजिए, एंटी क्रीपर। उसके बाद देखिए एंटी क्रीपर। एंटी क्रीपर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं इसके पहले, है ना। जो क्रीप वाला टॉपिक था उसमें आप देखना लास्ट में हमने एंटी क्रीपर के बारे में पढ़े थे। देखिए इस तरीके से एंटी क्रीपर्स होते हैं, रेल्स के नीचे इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। रेल्स के नीचे इसको फिक्स किया जाता है एंटी क्रीपर्स को, स्लीपर और रेल्स के नीचे। देखिए किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। एंटी क्रीपर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट क्रीप इन अ रेलवे ट्रैक, ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो ये एंटी क्रीपर वहाँ पे यूज किया जाता था जहाँ पे क्रीप को अवॉइड करना है। डिफरेंट शेप्स ऑफ एंटी क्रीपर्स आर अवेलेबल एंड आर फिक्स टू द फुट ऑफ रेल। अभी जैसे मैंने आपको बताया फुट ऑफ रेल में फिक्स किया जाता है, इसे इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि रेल में मूवमेंट ना हो। इसका नाम ही देखिए क्रीप का, एंटी क्रीप। एंटी क्रीप मतलब क्रीप को रोक रहा है, ठीक है। तो ये होता है एंटी क्रीपर, ठीक है। तो ये हो गया फास्टेनिंग एंड फिक्सचर्स के बारे में। 2 मिनट हो गए, मैं आपको एक इमेज बताता हूँ। ये देखिए, ये इमेजेस देखिए आप, फास्टेनिंग एंड फिक्सचर। ये देखिए फिश प्लेट के जैसे हमने देखिए अलग अलग शेप की होती है फिश प्लेट, ठीक है ना। ये देखो, ये देखिए प्लेट है, ये स्पाइक है, डॉग स्पाइक है। इस तरीके से रेल और स्लीपर को फिक्स करने के लिए यूज किया गया है। 4 बोल्ट इसमें भी है, ठीक है ना। ये देखिए 4 बोल्ट है इसमें। फिश प्लेट, ये स्पाइक हो गया, अलग अलग इमेजेस है। ये देखो यहाँ पे इनसाइड में भी देखिए उस तरीके से स्पाइक्स को रखा जाता है, ठीक है। स्पाइक की एक और इमेज है। फिश प्लेट, डबल फिश प्लेट लगी है यहाँ पे, ठीक है ना, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इमेजेस देख लीजिए आप। ये देखिए ये स्पाइक है, देखो यहाँ पे डॉग स्पाइक है, ये डॉग स्पाइक है, दिख रहा है। ये भी एक स्पाइक है। इस तरीके से रेल और स्लीपर को फिक्स किया गया है, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये जो बता रहा था चेयर्स है, ठीक है ना, ये चेयर्स है, चेयर्स की एक इमेज है। ये फिश प्लेट है, उस साइड पे एक फिश प्लेट लगाते हैं, चेयर्स हो गई। ठीक है, तो ये फास्टेनिंग एंड फिक्सचर्स के बारे में था टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो हमारा सिलेबस में है, ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे आगे। उसमें मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका सुपर एलिवेशन के बारे में रहेगा, ठीक है। वो हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड आप चालू रखिए, ये देख ही लेते हैं हम। देखिए आपके सिलेबस में रेल्स हो गया है, वियर डिफेक्ट, क्रीप हो गया, लॉन्ग वेटलेट, स्लीपर्स हो गया, स्लीपर डेंसिटी, बलास्ट कुशन। फिर देखिए स्पाइक्स के बारे में पढ़े, फिश बोल्ट, हुक बोल्ट, डॉग बोल्ट, पैंट्रोल क्लिप। पैंट्रोल क्लिप मतलब वो राउंडेड जो स्पाइक था वो ये पैंट्रोल क्लिप, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया पैंट्रोल क्लिप। सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इतना टॉपिक तो हमारा कवर हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब देखेंगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक देखेंगे, गेज ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो ये जो थे रेल कंपोनेंट्स के जो पार्ट्स है वो इतना हमारा कवर हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।